Hi, welcome or welcome back to my channel, and in this video we're going to talk about board practicals class 12th के because I just had all my board practicals, not all because painting का अभी भी बाकी है, but that is like a 6th subject, so उसके लिए I'll just update in a short or something, but अभी जो main subjects हैं I'm going to talk about those. सबसे पहले I had my accounts board practical, and it was like our external examiner was kind of strict, so all the other kids who had gone before us, so like our roll number was एक तो दो लोगों में जा रहे थे. Our roll number was like the 6th or 7th slot. I don't exactly remember the slot, but हाँ काफ़ी देर बाद गए थे, तो दो करके लोग जा रहे थे. एंड लकीली मुझे अकाउंट्स और इको जो दो सबसे डरावने सब्जेक्ट थे उसमें आई गॉट टू गो विद माई ओन फ्रेंड, सो दैट इज़ रियली गुड. यू हैव टू लाइक प्रेजेंट योर सेल्फ बहुत ही अच्छे से. यू हैव टू बी वेल मैनर्ड. यू हैव टू विश द एक्सटर्नल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून whenever your slot is, कि अगर 12 बजे के बाद है then afternoon, 12 बजे से पहले है then morning. ये इस बात का ना ध्यान रखना that you're not saying good morning 12 बजे के बाद, because it can actually leave, I guess, a bad impression, and you don't want to leave a bad impression. You have to leave a very good impression so that they give you the highest score. Like 20 on 20 is like the ideal score which you need in practicals. क्योंकि अगर practicals में full नहीं आएंगे then it will be really difficult, क्योंकि theory में full लाना is really difficult. You should aim for that कि तुम्हें full ही लाना है और कोई चीज़ में कमी नहीं रखनी है, but it is difficult, we all know that. So you cannot like take a chance and score less in practicals. So इसमें पढ़ के जाना, don't take this lightly. This is board practical, not your pre-board. Pre-board को हम लोग lightly ले लेते हैं. I know we don't really study that much in pre-board जितना हम normally boards में पढ़ते हैं. मतलब actual board जब होगा, then I will also study more than what I'm studying now, right now. So practicals को बिल्कुल लाइटली भी मत लेना और फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. लाइक इफ़ यू आर अ कंसिस्टेंटली गुड स्टूडेंट इन योर स्कूल देन यू डू हैव an advantage. Teachers will talk to the examiner, the external examiner, for your marks, and they will fight for your marks, especially if you are a good student. Like I basically know that अभी तक मैंने जितने भी subjects दिए हैं, like अकाउंट्स, BST, entrepreneurship, इको एंड इंग्लिश में तो इंटरनल होता है, these 4 इनमें मेरे फुल मार्क्स प्रैक्टिकल्स में पक्के हैं. आई जस्ट नो दैट, विच इज़ वाई आई कैन गिव यू द गोल्डन एडवाइस. Like the teacher will fight for each and every student's marks. The thing is that not everyone is going to score full in practicals. Like you know this, सबको 20 या 30 नहीं मिल सकते. That is not possible. So for that you can like expect अपने throughout जो भी स्कूल में तुमने स्कोर किया है उसके हिसाब से you can expect 19 और 18 और anything. like हमारे में अकाउंट्स में the lowest जो कि स्कोर गया था वो था 15 out of 20, which is like not bad if you like look at your overall scores. like तुम्हें क्या expectation है if you don't answer anything, like anything. वाइवा में वो पूछे जा रहे क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं आता, then 15 एक्सपेक्ट करके चलना. so you can't answer any question, then that is going to happen. but like accounts में the examiner was actually strict, and she also asked one question which was like not even in the syllabus of accounts, कि debt or equity में which one is the cheaper option and what is the reason for that. So that is like from BST, that is not even from accounts. And of course I hadn't studied BST accounts के वाइवा के लिए, like why would I do that? But even though I like answered the thing like debt cheaper होता है, we all know like that is common sense for commerce students, so वो तो ठीक है चला गया था. Then reason थोड़ा आड़ा टेढ़ा सा था, not exactly what she was looking for, and she explained us कि क्या reason actually था. And she herself said that ये तो मैं अकाउंट से नहीं पूछ रही हूँ, बट तुम लोग को पता होना चाहिए. सो ठीक है, फाइन. लाइक यू शुड नो अ फ्यू थिंग्स जो कि बाहर से पूछे जा सकते हैं, बिकॉज ये सब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है. एंड इफ़ जो पहले
बच्चे जो जाते हैं हमसे पहले, इफ दे डोंट आंसर करेक्टली देन फिर एग्जामिनर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है एंड दे स्टार्ट आस्किंग वियर्डर क्वेश्चंस बाकियों से. सो दैट हैपेंड इन द अकाउंट्स वन, बट अच्छे से हो गया. एंड फाइल शुड बी प्रॉपरली, मतलब सजाया हुआ. डेकोरेट योर फाइल अच्छे से, मेक इट प्रेजेंटेबल, मेक इट ब्यूटिफुल. लाइक मुझे फाइल के लिए बहुत कुछ करना पड़ा था. इट्स लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी. नेक्स्ट वाइवा वॉज ऑफ BST. BST में यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग. लाइक अकाउंट्स में भी यू हैव टू स्टडी द होल फाइल. तुमने फाइल में करा क्या है, यू हैव टू नो दैट. खुद बनाया है, बाहर से बनवाइए फाइल, आई डोंट केयर ऑब्वियसली. लाइक दे ऑल्सो डोंट केयर एंड दे विल नॉट फाइंड आउट कि तुमने बाहर से बनाया है. बस pretend like you know everything that is there in the file, तो फिर they won't even doubt कि तुमने खुद बनाया है या बाहर से बनवाया है. So use your brain. Accounts में there is theory का portion थोड़ा सा that you have to study, and book 3 को अच्छे से prepare कर लो because file is based on ratios and cash flow statement. तो ratios और cash flow statement की तो हर चीज़ जो कि थ्योरी से रिलेटेड है, लाइक रेशियोज के फॉर्मूलाज या कैश फ्लो की भी बहुत सारी चीज़ें हैं थ्योरी बेस्ड, वो सब यू हैव टू मेमोराइज इतने अच्छे से कि उससे तो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो यू आर एबल टू आंसर. ये 2 चैप्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. बुक 3 की थ्योरी, हेड सब हेड, वो सब कुछ जो भी है, वो सेकेंड चैप्टर जो है उसमें, वो सब यू हैव टू डू इट. एंड बाकी चैप्टर्स में से भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले पोर्शन है क्योंकि यू कैन आस्क योर ओन टीचर कि क्या क्या आ सकता है. एंड अदरवाइज जो क्वेश्चन मेरे से पूछे थे उसकी आई विल मेक अ लिस्ट एंड पेस्ट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. पिन्ड कमेंट, यस, उसमें आई विल गिव ऑल द क्वेश्चंस जो कि मेरे से पर्सनली पूछे गए थे, सो दैट यू नो. एंड मैंने वैसे कुछ तो एक्स्ट्रा कहीं से कुछ नहीं किया था. आवर टीचर गेव अस सम क्वेश्चंस, वो करे थे हमने. BST एंड एंटरप्रेन्योरशिप में यू हैव टू फोकस ऑन द चैप्टर्स दैट आर रिलेटेड टू योर टॉपिक. जैसे कि BST में आई took marketing management as my topic and I made a product. Like my product was instant coffee and you have to also make a prototype of your product कि ये है example, like whatever your product is. I had like wrapped a खाली Nescafe का jar with my own logo and label and everything, and बस वही. Obviously the product is not going to be completely real and completely yours because it is a hypothetical business, a hypothetical situation. You don't really have a business or you are not really starting a business. It is just a school project. It is just a project for your exams. So you have to make a fake product. Obviously the examiner knows that you're making a fake product and that is not going to deduct your marks. But अगर तुम product show करोगे then it will just leave a lasting impression on the examiner, I think, because that's what our teacher told us to do and we did it and full marks भी मिल गए. तो do it if you can. And फाइल वही फिर से बहुत सुंदर सुंदर बनानी है. फाइल में सब कुछ होना चाहिए. फाइल तो खैर लोगों का बन चुका है, so what am I even saying. एंड कॉन्फिडेंस के साथ मतलब मेरे में कॉन्फिडेंस होता ही है. आई एम अ पर्सन हु कैन राइट एग्जाम्स अच्छे से. लाइक मैं लिख तो लेती हूँ एग्जाम्स में ऑब्वियसली, बट मुझसे बिल्कुल बोला नहीं जाता. बट वाइवा में घुसने से जस्ट पहले आई हैड टोल्ड माई सेल्फ कि कुछ भी हो जाए यहाँ पे अपनी यैपर वाली आत्मा को निकालना है और बोलना है. बिकॉज आई एम नॉट गुड एट speaking with strangers or other people. I can only speak with a few people. Like सिर्फ कुछ लोगों से मैं इतने अच्छे से याप कर पाती हूँ, बट लाइक बाहर लोगों से बात करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी बीइंग एन इंट्रोवर्ट. मुझे खाना ऑर्डर करना या बाहर जाके शॉपिंग करने में भी शर्म आती है. सो that is the thing and I still managed to do it. So तुम लोग तो कर ही लोगे obviously. If I can do it, you can definitely do it. So इसमें BST में सबसे important chapter, अगर तुमने marketing management लिया है तो फिर marketing वाला chapter ही है जो book 2 में है.
एंड अगर तुमने वो वाला प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर लिया है तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़ के जाना है, फाइल अच्छे से पढ़ के जानी है। फाइल से तो वो पक्का पूछेंगे कुछ ना कुछ, फाइल बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। किस कंपनी के बारे में है, अगर प्रिंसिपल्स वाला है वो, तो किस कंपनी के बारे में तुमने लिया है उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इफ़ यू हैव टेकन इट ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट देन फिर तुमने अपनी कंपनी खोली है तो उसके बारे में सब कुछ, कि तुम्हारे कंपेटिटर्स कौन है, यूएसपी क्या है, टैगलाइन क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, तुमने ये वाला टॉपिक क्यों चूज़ किया है, ये वाला प्रोडक्ट क्यों चूज़ किया है, अगर टैगलाइन ये है तो फिर ये टैगलाइन क्यों है, प्रोडक्ट का नाम जो है वो क्यों है, एवरीथिंग। एंड देन बीएसटी में तो वो भी है प्राइस, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यू नीड टू नो ऑल ऑफ दैट। प्लस ऑन्ट्रे में ये सब तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। You also need to know your break-even point, break-even revenue, ये वो था, और फिक्स्ड कॉस्ट था, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब पता होनी चाहिए। कंपेटिटर का प्राइस क्या है, तुम्हारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, और एंटरप्रेन्योरशिप में जो मार्केट सर्वे वाली फाइल है उसमें से ये पूछा जाएगा कि तुमने क्या कंक्लूड किया इस मार्केट सर्वे से, एंड ऑल्सो लाइक द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चनेयर एंड सैम्पल साइज। सैम्पल साइज में कभी भी कम साइज मत बताना, इवन तो कम साइज यूजुअली होता है, कभी भी कम साइज मत बताना। सैम्पल साइज में हमेशा मिनिमम 15 लेके चलना। झूठ बोल रहे हो, वी ऑल नो दैट, बट कहना वही पड़ेगा। सो दैट्स दैट। और उसके बाद इंग्लिश का तो इंटरनल होता है तो वो तो अच्छे से हो जाएगा। देन इको में मेरा वाइवा इतना अच्छा जा रहा था, उसमें भी आई वॉज लकी इनफ टू गो विद पर्ल। सो उसमें इतने अच्छे से वाइवा जा रहा था, इतना बढ़िया ना, हमने इतने अच्छे से आंसर्स दिए दैट एग्जामिनर को चैलेंज लग गया। ईगो वॉज हर्ट इतना ज़्यादा दैट उन्होंने ग्राफ फेंक के मारा हमें। मतलब she asked us to make graphs on what was that, inflationary gap वाला ग्राफ, एंड मैंने तो गलत बना दिया क्योंकि we had all forgotten graphs, काफ़ी टाइम से ग्राफ्स रिवाइज नहीं किया था, और वाइवा में we didn't think कि ग्राफ आएगा तो we obviously didn't revise it। तो वो करके जाना, ग्राफ करके जाना, इवन तो उससे मार्क्स नहीं कटे क्योंकि वाइवा इतना अच्छा गया। उसने जो क्वेश्चन पूछा, इतने सारे क्वेश्चन पूछे थे एक तो उसने जो पूछा उसका आंसर हमने सही दिया था, जिस वजह से वाइवा इतना अच्छा गया कि शी डिडंट डिडक्ट द मार्क्स। सो वो ठीक है, बट फिर भी ग्राफ करके जाना कि बाई चांस अगर वाइवा में अटक गए तो फिर ग्राफ में सही हो जाएगा तो फिर हो जाएगा ये, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड क्वेश्चंस एक बार देख लेना, मैं पिन कमेंट में कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगी जो मेरे से पूछे गए थे हर सब्जेक्ट के। एंड या दैट्स दैट। और अच्छे से बिल्कुल स्माइल के साथ और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश करना, फाइल सीधी पकड़ाना, तभी बैठना अगर वो बैठने कहे, उठने से पहले थैंक यू बोल के उठना, और एकदम अच्छे से प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में जाना, बाल एकदम टाइटली बांध के जाना, कोई बैंग्स फ्लिक्स वो सब बाहर ना निकले हो। एंड या स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट पोस्चर में बैठना, वहाँ पे चेयर पे जाके ऐसे लटक मत जाना। एंड या दैट्स ऑल, बस चिल करो, प्रैक्टिकल्स अच्छे से निकल जाएंगे, असली बोर्ड पे फोकस करो, वो ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं, वही मैं भी कर रही हूँ। सो या प्रैक्टिकल्स की इतनी चिंता मत करो। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़, बिकॉज मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती रहूँगी, एंड बोर्ड रिलेटेड कंटेंट तो बहुत सारा आने वाला है। सो या प्लीज सब्सक्राइब फॉर दैट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज गिव इट अ बिग thumbs up, like it, and bye, I'll meet you in the next one.